everyone, hello students. So welcome to my channel. Our today topic is to learn about the statin. Statin is a very important class of drug that belongs to the anti-hyperlipidemic drugs. ये statin जो हमारी drug है वो anti-hyperlipidemic drug class से belong करती है और इस lecture में हम बात करेंगे what is statin, how it works in our body system and how it decreases the cholesterol level in our blood. So before wasting our time, let's start the statin. Okay. स्टैटिन जो है आपकी एक एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग है, ठीक है. दैट मीन्स व्हाट इज एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग? इट बिलोंग्स टू एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग. एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग, राइट. सो स्टैटिन इज अ एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग, ये हम सभी जानते हैं. सो सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग. हाइपरलिपिडीमिया क्या होता है? जब लिपिड की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है. उस केस को, उस कंडीशन को हम हाइपरलिपिडीमिया कहते हैं, राइट. अगर हाइपरलिपिडीमिया को ट्रीट करने के लिए अगर कोई ड्रग यूज कर रहे हैं जो उसके अगेंस्ट काम कर रही है, द नेम इज हियर दैट इज द एंटी. व्हाट इज एंटी? एंटी मतलब अगेंस्ट काम करना. दैट मीन्स कि अगर लिपिडीमिया के अगेंस्ट कोई ड्रग काम कर रही है तो उस ड्रग को हम कहते हैं एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग. So we can define here the drug which is used to treat the hyperlipidemia is known as anti-hyperlipidemic drug. So there are various classes. There are various drug classes in the anti-hyperlipidemic drug, and one of the very important classes of drug is statin. Right? In a statin there are various drugs. Like for example, there is a very famous drug that is the simvastatin. What is that? Simvastatin. Another one is lovastatin, right? And another one is pravastatin. Next, atorvastatin. So these are the some drugs which belongs to the statin category or anti-hyperlipidemic drug, right? Right. इसके बाद अगर हम बात करें तो स्टैटिन क्या काम करता है, कैसे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है, ये हमारे लिए इतना बहुत इंपॉर्टेंट है और यही हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन में. हाउ स्टैटिन वर्क ऑन द लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल. सो बेसिकली इट डिक्रीज द लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, राइट. बट बिफोर studying how it decrease the cholesterol, we should know, is cholesterol is bad? The answer will be no. Cholesterol is not bad. Cholesterol is not always bad. It is good. It play many functions in our body, like synthesis of steroid, like synthesis of vitamin K, like synthesis of vitamin D. So many substances are synthesized by the cholesterol, right? But when it is present in the excess quantity, excess amount in the blood, it is bad. It gives harmful effect to our body. Imagine your skin. That is the flexibility and softness of your skin. It is due to the cholesterol. So it is not bad, right? But जब हमारे blood में concentration जो होती है कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा हो जाती है तो हमारे लिए क्या हो जाता है? ये harmful हो जाता है. इसीलिए इसको decrease करना हमारे लिए ज़रूरी है. Because कोलेस्ट्रॉल जब ज़्यादा हो जाएगा तो क्या दिक्कत हो सकती है? What happens to our body? There is a disease that is the CVD. There is a one disease that is a CVD, cardiovascular disorder. Many of the cardiovascular disorder is associated with the increased level of cholesterol. बहुत सारी ऐसी डिजीज है जिसमें क्या हो जाता है बेटा? कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है आपका वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है. जैसे कि आपकी IHD हो गई, इस्केमिक हार्ट डिजीज, ठीक है, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज and coronary heart disease. So we all know that according to the current scenario, the CVD is the number one cause of death. CVD is number one cause of death. It is the leading cause of death. So we have to decrease the cholesterol level by any of the substance. अगर किसी के बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की लेवल बढ़ गई है, इंक्रीज कर गई है, तो हमें क्या करना होगा? उसको डिक्रीज करना होगा, राइट. सो हमने क्या कर दिया? एक ड्रग बना दी स्टैटिन. It is a very interesting drug, statin. ये कैसे काम करती है? Basically, it decrease the LDL. It decrease the
LDL, right? What is LDL? वो डिक्रीज करता है, right? So what is LDL? Is LDL is bad to us? So there are some cholesterol, right? That is the, आप सभी नाम जानते होंगे, HDL. Basically it is a chylomicrons. It is a LDL and it is the IDL, right? HDL को टैग मिला हुआ है, इट इज अ हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, बहुत सारे अच्छे काम करता है, ठीक है, इसलिए इसको टैग मिला हुआ है, दैट इज इट इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल, इट इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल। हमारी क्लास में बच्चे होते हैं ना, बहुत अच्छे सिंसियर होते हैं, उनको टैग मिल जाता है कि ये गुड बॉय है, ये बैड बॉय है। सो उसी तरीके से HDL को टैग मिला हुआ है, इट इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि बहुत सारे अच्छे काम करता है हमारी बॉडी में। इन कंट्रास्ट LDL जो है बहुत खराब सा बच्चा है, ठीक है, इसके कुछ ऐसे कारनामे हैं जो अच्छे नहीं है। So the question is here, why LDL is bad? अगर हमें आके कोई कहे कि तुम अच्छी नहीं हो, you are bad, so क्या हम मान जाएंगे? हम उनसे ये कहेंगे कि please tell me why I am bad, right? So why LDL is bad? Why tag इसको मिला हुआ है LDL is bad? इसके लिए हम अलग से बात करेंगे कि why LDL is bad, because ये फिर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, हमें फोकस करना है स्टैटिन पे, right? So LDL जो है हमारा, इसको बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं, इट इज अ बैड कोलेस्ट्रॉल, इसके कारनामे सही नहीं है, राइट? लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एंड आइडियल इज द इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट हमेशा बीच वाला होता है, ठीक है। सो HDL इज गुड कोलेस्ट्रॉल, LDL इज अ बैड कोलेस्ट्रॉल। तो बेसिकली हमें क्या करना है, टारगेट करना है टू रिड्यूस द लेवल ऑफ LDL। सो स्टैटिन वही काम करती है, स्टैटिन डिक्रीजेस द लेवल ऑफ LDL इन आवर बॉडी, इन आवर सर्कुलेशन, इन आवर ब्लड, राइट? तो कैसे काम करती है वो हम देखेंगे। इसका काम करने का जो तरीका है स्टैटिन का, चाहे सिम्वास्टैटिन हो या एटोरवास्टैटिन हो या एनी ऑफ द ड्रग दैट बिलोंग्स टू द स्टैटिन, सो ये काम कैसे करती है, जैसे कोलेस्ट्रॉल जिस सिंथेसिस पाथवे से हमारी सिंथेसाइज होती है, फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल बाय द सिंथेटिक पाथवे, उस पाथवे को टारगेट करती है, ठीक है। अगर किसी प्रोसेस से कोलेस्ट्रॉल हमारा बन रहा है, ठीक है, तो उस प्रोसेस पे हमारी जो स्टैटिन है वो काम करती है, ऐसी स्टेप्स को टारगेट करेगी जिससे कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस जो है हमारी रुक जाए, ठीक है। तो वो कौन सा पाथवे है, कौन सी फिनोमेना है जिससे कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस होती है, दैट इज द मेवालोनेट, दैट इज द मेवालोनेट पाथवे। इसमें मेवालोनेट बनता है, इसलिए इसका नाम भी रख दिया गया मेवालोनेट। और मेवालोनेट ही आपका एक की प्रोडक्ट है इसमें, जिससे सारी सब्सटेंसेस की सिंथेसिस होती है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया मेवालोनेट। तो होता क्या है इसमें, ये देखते हैं। तो इतना भी देखते हैं कि मेवालोनेट पाथवे जो है, इसके थ्रू ही कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस होती है, राइट? सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की नहीं, और अदर सब्सटेंसेस की सिंथेसिस होती है, बट कोलेस्ट्रॉल की भी सिंथेसिस हमारी जो होती है वो मेवालोनेट पाथवे से होती है, और स्टैटिन वर्क्स ऑन द मेवालोनेट पाथवे। इज इट क्लियर टू यू? ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेवालोनेट पाथवे? मेवालोनेट पाथवे में क्या होता है, जो फर्स्ट हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, वो है हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए। इट इज अ एसिटाइल कोएंजाइम ए, नाम सुना होगा सभी ने, ठीक है। क्या है एसिटाइल कोएंजाइम ए? इट इज अ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, इट इज अ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट। मेटाबॉलिक प्रोडक्ट क्या होते हैं? ऐसे प्रोडक्ट जो मेटाबॉलिज्म के बाद बनते हैं, उनको हम कहते हैं मेटाबॉलिक प्रोडक्ट। सो इट इज अ वन ऑफ द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट formed during the metabolic pathway, right? So the first initiative material is acetyl coenzyme A. This acetyl coenzyme A will convert into the HMG coenzyme A. This acetyl coenzyme A will convert into the HMG coenzyme. Now, this HMG coenzyme A will convert into the मेवालोनेट, जिसपे नाम पड़ा हुआ है पाथवे का। This HMG coenzyme A will convert into the mevalonate, right? So this is the key product. This is the key product, जिससे बहुत सारे substances की synthesis होती है। But after the multiple steps, इसके बाद बहुत सारे steps आते हैं, वो steps हम skip कर रहे हैं because that are not useful to us for the static,
स्टार्टिंग मोड ऑफ एक्शन के लिए हमें उन स्टेप्स की जरूरत नहीं है. देयर आर मल्टीपल पाथवे, देयर आर मल्टीपल स्टेप्स, राइट. अप्रॉक्स यहाँ पे 30 स्टेप्स हैं. कितने हैं बेटा? 30 स्टेप्स है. आफ्टर 30 स्टेप्स, आफ्टर मल्टीपल स्टेप्स, दिस मेवालोनेट सिंथेसाइज वेरियस प्रोडक्ट्स. सिंथेसाइज वेरियस प्रोडक्ट. कौन कौन से प्रोडक्ट्स हो? पहला तो हमारा क्या हो गया, दैट इज द कोलेस्ट्रॉल. पहला हमारा जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो हमारा कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है. द नेक्स्ट वन इज विटामिन डी. ओके. अनदर वन इज विटामिन के. अनदर वन इज स्टेरॉइड एंड बहुत सारे ऐसे की एंजाइम्स और फैक्टर्स बनते हैं, राइट. So these all are synthesized from the mevalonate after the multiple steps. We are skipping these multiple steps because हमें इतनी ही जरूरत है, right? अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं. एसिटाइल कोएंजाइम E is converting into the HMG coenzyme A, and after that HMG coenzyme A, this is converting into the mevalonate, and after multiple steps, this mevalonate produce or form different various substances. That is the cholesterol, vitamin D, vitamin K, steroids and some enzymes and factors. Okay? अब हमें ध्यान देने वाली बात ये है कि इस पाथवे में ऐसा कहाँ पे टारगेट करेंगे जिससे हमारी कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस जो है वो कम हो जाएगी. So this step, the conversion of HMG coenzyme A to the mevalonate is the rate limiting steps. Is the rate limiting steps. रेट लिमिटिंग स्टेप्स क्या होते हैं? रेट मीन्स क्या होता है? दर. रेट मीन्स क्या होता है? दर. किस दर से किसी चीज की सिंथेसिस हो रही है, मतलब कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो किस रेट से कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस हो रही है, और वो रेट हम कंट्रोल कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं किसी स्टेप पे, ठीक है. किसी भी सब्सटेंस को कंट्रोल करके, किसी एंजाइम को कंट्रोल करके अगर हम उसकी रेट को कंट्रोल कर सकते हैं तो वो हमारा स्टेप हो जाता है रेट लिमिटिंग स्टेप्स, राइट. और इसको रेट लिमिटिंग स्टेप्स क्यों कहते हैं? बिकॉज यहाँ पे ना एक बहुत ही बढ़िया इंसान काम कर रहा है. इंसान इन द सेंस एक एंजाइम काम कर रही है, दैट इज द HMG कोएंजाइम A रिडक्टेज. यहाँ पे एक एंजाइम काम कर रही है बेटा, ठीक है. ये कन्वर्जन जो हो रहा है HMG कोएंजाइम से मेवालोनेट में, ये अपने आप नहीं हो रहा. इट इज द कैटेलाइज्ड, it is the catalyzed by an enzyme. That enzyme is known as HMG coenzyme A reductase. जैसा नाम है वैसा काम है. मतलब कि क्या काम है इसका? It reduce the HMG coenzyme A to the mevalonate. इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है. इस कन्वर्जन में क्या हो रहा है? HMG कोएंजाइम में रिड्यूस हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है. इसमें मेवालोनेट, ठीक है. और रिडक्शन कौन करा रहा है? HMG coenzyme A reductase रिडक्शन करा रहा है. So this enzyme is very important here. This enzyme is only responsible for this all happening, for the synthesis of cholesterol, for the synthesis of vitamin D, for the synthesis of vitamin K, for the synthesis of steroids and so many other substances. These all are happening because of this. Because of this HMG coenzyme A reductase enzyme. This is the enzyme. This is a enzyme. Enzyme क्या करता है? कैटेलाइज करता है रिएक्शन को. रेट को इंक्रीज करेगा तो रेट को डिक्रीज करेगा, ठीक है. तो यहाँ पे रेट को क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है. सॉरी, रेट को इंक्रीज कर रहा है. अभी मैं स्टार्टिंग की बात नहीं कर रहा, ठीक है. सो दिस एंजाइम इज कैटेलाइज द रिएक्शन ऑफ HMG कोएंजाइम A to the mevalonate. That's why it is a rate limiting steps in the cholesterol synthesis or in the mevalonate pathway. So this is the mevalonate pathway. ये कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का पाथवे. अब जो हमारी ड्रग है जो हमने बनाई है, ठीक है, वो क्या काम करती है? दिस स्टैटिन will inhibit, this statin will work on this enzyme HMG coenzyme A reductase. इस एंजाइम को इनहिबिट करेगी जिससे कि ये फंक्शन अपना प्ले नहीं कर पाएगा, और द कन्वर्जन ऑफ HMG coenzyme A to the mevalonate will be stopped, right? So basically ये सिंपल सा हो गया ना. स्टैटिन क्या कर रहा है? जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज है,
ठीक है, उसको टारगेट कर लिया। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, एंजाइम है, HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज। इस एंजाइम को स्टैटिन ने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। दैट्स व्हाई स्टैटिन इज कॉल्ड एज HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर। अब जैसे बुक पढ़ते होगे ना, उस पर यही लिखा होगा, स्टैटिन इज HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर। अब समझ में आया आपको कि स्टैटिन जो है HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर कैसे है और क्या काम करता है इनहिबिट करके। सो बेसिकली क्या होगा, स्टैटिन विल ब्लॉक दिस एंजाइम HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज एंड फर्दर द कन्वर्जन ऑफ HMG को ए to the mevalonate will be inhibited and this all synthesis cholesterol will be decreased, vitamin D will be decreased, vitamin K will be decreased, steroid will be decreased and all substances will be decreased by the action of statin. Not only cholesterol, all substances that are formed due to the HMG coenzyme reductase, all formation will be decreased. Okay, so this is the mode of action of statin. I think सभी को clear हो गया होगा. If you have any doubt, we can talk again on the other topic and on this topic also. So please let me know कि आपको कहाँ पे doubt है और आप कौन से और topic को पढ़ना चाहते हैं. दो चीजें हमने बताई है यहाँ पे कि the first one is why LDL is bad, right? This is very important part. तो उसके लिए भी हम बात करेंगे. If you want to know, then please type in the comment box. And the second one is very important, that is the physiology of lipid. Lipid की physiology क्या है? What is the fate of absorption? What is the fate of metabolism? Right? तो ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है. ये तो secondary हम तभी जानेंगे जब हम lipid की physiology जानेंगे. So these are also important. So उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे. Okay? So I hope you all understand and getting my point. So thank you.